السلام علیکم۔ آپ ڈیجیٹل لٹریسی پروگرام کی ٹیچر ٹریننگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو 8ویں جماعت کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ ویڈیو نمبر 26 ہے جو باب 11 کے حوالے سے ہے۔ اس باب کا نام ہے اسکریچ پروجیکٹ ایسٹیرائڈز۔ اس ویڈیو میں ہم اسکریچ میں درمیانے درجے کے تصورات کا استعمال کرتے ہوئے چھوٹے کھیل یا پروجیکٹس بنا سکیں گے۔ ایسٹیرائڈ کو گیم کا حصہ بنانے کے لیے ہمیں 4 مرحلوں میں اسکرپٹ بنانا ہوگا۔ سب سے پہلے اسپرائٹ کا بنیادی اسکرپٹ جو اسپرائٹ کو کچھ وقفوں کے بعد گیم کا حصہ بنائے گا اور ساتھ ہی اس کے کلون کو اسٹیج پر تیرنے میں مدد کرے گا۔ دوسرا، ایسٹیرائڈ اسپرائٹ کی اسٹیج پر حرکت۔ تیسرا، اسپرائٹ کا اسٹیج کے کناروں سے غائب ہو کے دوسرے کناروں سے ظاہر ہونا۔ اور چوتھا اور آخری، اگر اسپرائٹ انرجی بلاسٹ سے ٹکرائے تو اس کا 2 حصوں میں ٹوٹنا اور پھر غائب ہو جانا۔ اس سلسلے میں پہلے مرحلے کا اسکرپٹ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بنا چکے ہیں۔ آئیے اب اسکرین پر ایسٹیرائڈز کی حرکت کا اسکرپٹ بناتے ہیں۔ جیسے کہ راکٹ خلا میں گریوٹی نہ ہونے کی وجہ سے تیرتا رہتا تھا، ویسے ہی ایسٹیرائڈز بھی خلا میں تیرتے رہیں گے اور تیرنے کے ساتھ گھومتے بھی رہیں گے۔ ایسا کرنے کے لیے ہم اسپرائٹ کے لیے ویلوسٹی کے تصور کا استعمال کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کا اسکرپٹ کیسا دکھے گا۔ اسپرائٹ پین سے ایسٹیرائڈ کی اسپرائٹ پر ٹیپ کریں۔ سب سے پہلے 3 ویریبلز بنائیں: ایکس ویلوسٹی، وائی ویلوسٹی اور روٹیشن۔ پھر کنٹرول کے ٹیب سے وین آئی اسٹارٹ ایز اے کلون بلاک کو اسکرپٹ ایریا پر لائیں۔ پھر لک سے شو بلاک کو اسکرپٹ ایریا پر لائیں اور وین آئی اسٹارٹ ایز اے کلون بلاک کے ساتھ جوڑ دیں۔ پھر ویریبل بلاک ٹیب سے 3 مرتبہ سیٹ بلاک کو اسکرپٹ ایریا پر لائیں اور موجودہ اسکرپٹ سے جوڑ دیں۔ اب سیٹ بلاکس میں ایکس ویلوسٹی، وائی ویلوسٹی اور روٹیشن کے ویریبلز سیٹ کر دیں۔ پھر آپریٹر ٹیب سے 3 مرتبہ پک رینڈم بلاک کو اسکرپٹ ایریا پر لائیں اور ایک ایک سیٹ بلاک میں رکھ دیں۔ پھر تینوں رینڈم بلاکس میں بائیں جانب -3 اور دائیں جانب 3 کی ویلیوز کو سیٹ کر دیں۔ اب کنٹرول ٹیب سے فار ایور بلاک کو اسکرپٹ سے جوڑ دیں۔ پھر موشن بلاکس میں سے ٹرن بلاک، چینج ایکس بلاک اور چینج وائی بلاک کو فار ایور بلاک میں ایک ایک کر کے جوڑ دیں۔ اس کے بعد ویریبل بلاک ٹیب سے روٹیشن کے ویریبل کو ٹرن بلاک کے اسکرپٹ میں رکھ دیں۔ پھر ایکس ویلوسٹی کے ویریبل کو چینج ایکس بائی بلاک میں رکھ دیں۔ اور آخر میں وائی ویلوسٹی کو چینج وائی بائی بلاک میں رکھ دیں۔ اپنی ویڈیو کو 3 منٹ کے لیے پاز کریں اور یہ اسکرپٹ دہرائیں۔ کیا آپ کو ایسٹیرائڈ کی حرکت کرنے کا اسکرپٹ سمجھ آیا؟ اپنی ویڈیو کو 1 منٹ کے لیے پاز کریں اور اس پر غور کریں۔ اگر آپ کو اسکرپٹ سمجھ آ گیا تو بہت خوب، اور اگر نہیں
तो आइए मिलकर इस स्क्रिप्ट पर एक मर्तबा गौर कर लेते हैं। इस तस्वुर को गेम में दिखाने के लिए हमने x वेलोसिटी और y वेलोसिटी में रैंडम ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया है, जिससे एस्टेरॉयड की हरकत के दौरान में ये जाहिर होगा कि कोई एस्टेरॉयड तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और कोई एस्टेरॉयड आहिस्ता। साथ ही साथ स्क्रिप्ट में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि मुख्तलिफ एस्टेरॉयड्स का किसी सिमत में बढ़ना और घूमना भी मुख्तलिफ हो, जिससे वो बज़ाहिर अलग अलग एस्टेरॉयड्स लगें। तो जब भी एस्टेरॉयड का क्लोन बनेगा तो वो एक नई वैल्यू x वेलोसिटी, y वेलोसिटी और टर्न ब्लॉक को सेट करेगा, और वो ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक वो तबाह नहीं हो जाता। ये तो था एस्टेरॉयड की हरकत करने के लिए स्क्रिप्ट। अब अगले मरहले में हम एस्टेरॉयड का स्टेज के किनारों से जाहिर होने का स्क्रिप्ट बनाएंगे। क्योंकि हमारे स्टेज का रकबा महदूद है, इसलिए खला के तस्वुर को इस स्टेज पर बनाने के लिए हमें एक ऐसा तासुर पैदा करना होगा जिसमें वो एस्टेरॉयड्स जो तबाह नहीं हुए वो स्टेज के एक किनारे से जाकर दूसरे किनारे से वापस आ जाएं। मिसाल के तौर पर अगर एक एस्टेरॉयड दाएं जानिब से स्टेज से बाहर जाए तो वो बाएं जानिब उसी जगह से दोबारा जाहिर हो जाए। इस मिसाल का स्क्रिप्ट बनाने के लिए हम 2 नए वेरिएबल्स और 2 नए ब्लॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें x पोजीशन, y पोजीशन 2 वेरिएबल्स हैं और सेट x2 और सेट y2 2 ब्लॉक्स हैं। इन वेरिएबल्स और ब्लॉक्स का ताल्लुक स्टेज के कोऑर्डिनेट से है, जो स्प्राइट की मौजूदा पोजीशन से ताल्लुक रखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कोऑर्डिनेट्स में x पोजीशन -235 का मतलब स्टेज के बाएं जानिब होना है। तो शर्त के मुताबिक जब जब एस्टेरॉयड स्प्राइट स्टेज के बाएं जानिब -235 की पोजीशन पर पहुंचेगी, इफ ब्लॉक की शर्त ट्रू हो जाएगी, जिससे x पोजीशन की एक नई वैल्यू सेट हो जाएगी जो 235 यानी स्टेज की दाएं जानिब होगी, और इस तरह स्प्राइट स्टेज के दाएं जानिब से जाहिर हो जाएगी। आइए इस मिसाल का स्क्रिप्ट बनाते हैं। ध्यान रहे कि पिछला बनाया हुआ कोई भी स्क्रिप्ट डिलीट किए बगैर इस एस्टेरॉयड स्प्राइट के लिए स्क्रिप्ट बनाया जाएगा। इवेंट्स के टैब से व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन ब्लॉक को स्क्रिप्ट एरिया पर लाएं। फिर कंट्रोल टैब से फॉरएवर ब्लॉक को स्क्रिप्ट एरिया पर लाएं और मौजूदा ब्लॉक से जोड़ दें। मोशन ब्लॉक से मूव 10 स्टेप्स ब्लॉक को स्क्रिप्ट एरिया पर लाएं और फॉरएवर ब्लॉक के अंदर जोड़ दें। फिर कंट्रोल टैब से इफ ब्लॉक को स्क्रिप्ट एरिया पर लाएं और फॉरएवर ब्लॉक में सबसे नीचे जोड़ दें। अब ऑपरेटर टैब से लेस दैन ऑपरेटर को स्क्रिप्ट एरिया पर लाएं और इफ कंडीशन में रख दें। कंडीशन की बाईं तरफ मोशन टैब से x पोजीशन ब्लॉक को रखें और दाएं जानिब वैल्यू पर टैप करके -235 लिखें। फिर मोशन टैब से सेट x2 ब्लॉक को स्क्रिप्ट एरिया पर लाएं और इफ ब्लॉक के अंदर जोड़ दें। सेट x2 ब्लॉक की वैल्यू पर टैप करें और वैल्यू को 235 कर दें। अपनी वीडियो को 3 मिनट के लिए पॉज करें और ये स्क्रिप्ट दोहराएं। इसी तरह अगर स्टेज स्प्राइट स्टेज के दाएं जानिब किनारे पर है
तो x पोजीशन की वैल्यू क्या होगी? अगर आप भी 235 सोच रहे हैं तो आप दुरुस्त हैं। तो मान लीजिए कि अगर स्प्राइट दाएं जानिब से गायब हो जाए तो बाएं जानिब से जाहिर करने की शर्त -235 होनी चाहिए। क्या आप फॉरएवर ब्लॉक के अंदर ऐसी मज़ीद 3 शराइत बना सकते हैं जिनके रवैये मंदरजा झेल हों? अगर स्प्राइट दाएं जानिब किनारे से गायब हो तो बाएं जानिब किनारे से ज़ाहिर हो जाए। अगर स्प्राइट ऊपर की जानिब किनारे से गायब हो तो नीचे की जानिब किनारे से ज़ाहिर हो जाए। अगर स्प्राइट नीचे की जानिब किनारे से गायब हो तो ऊपर की जानिब किनारे से ज़ाहिर हो जाए। अपनी वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करें और इसका हल ढूंढें। ये पिछले टास्क के जवाब हैं। अपनी वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करें और अपने जवाब की इस्लाह करें। अब एस्टेरॉयड का स्क्रिप्ट बनाने के इस मरहले में हमें एक ऐसा स्क्रिप्ट बनाना है जिसमें रॉकेट के फायर करने पर अगर बुलेट एस्टेरॉयड से पहली बार टकराए तो एस्टेरॉयड 2 छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाए, और अगर दूसरी बार टकराए तो एस्टेरॉयड गायब हो जाए यानी तबाह हो जाए। और खेल में दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए हम यूज़र को इनामात से नवाजेंगे। जैसे जब भी बुलेट एस्टेरॉयड से टकराएगा यूज़र को एक पॉइंट मिलेगा जो हिट नाम के वेरिएबल में जमा हो जाएगा, और साथ ही टाइमर वेरिएबल में भी 2 आदाद से वैल्यू बढ़ जाएगी जिससे यूज़र के खेलने का वक्त भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यूज़र जितनी ज़्यादा मर्तबा हिट करेगा उसके खेलने का वक्त उतना ही बढ़ता जाएगा। क्या आप हिट और टाइमर नाम के 2 वेरिएबल्स बना सकते हैं? अपनी वीडियो को 3 मिनट के लिए पॉज करें और ये बनाने की कोशिश करें। ये पिछले टास्क का जवाब है। वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करें और अपने जवाब की इस्लाह करें। आइए अब स्क्रिप्ट पर गौर करते हैं। इस स्क्रिप्ट को हम 3 हिस्सों में बनाएंगे। पहला हिस्सा जिसमें हम स्प्राइट के क्लोन का शुरू का स्क्रिप्ट लिखेंगे। दूसरा हिस्सा जिसमें स्प्राइट एनर्जी ब्लास्ट यानी बुलेट के हिट होने पर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। तीसरा हिस्सा जिसमें स्प्राइट 2 मर्तबा हिट होने पर गायब हो जाएगी। आइए अब हम स्क्रिप्ट का पहला हिस्सा प्रोग्राम करते हैं। स्प्राइट पेन से एस्टेरॉयड पर टैप करें, फिर इवेंट टैब में से एक मर्तबा और व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन ब्लॉक को स्क्रिप्ट एरिया पर लाएं। कंट्रोल टैब से फॉरएवर ब्लॉक को स्क्रिप्ट एरिया पर लाएं और व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन ब्लॉक के साथ जोड़ दें। फिर इफ ब्लॉक को स्क्रिप्ट एरिया पर लाएं और फॉरएवर ब्लॉक के अंदर जोड़ दें। सेंसिंग ब्लॉक से टचिंग स्प्राइट ब्लॉक को स्क्रिप्ट एरिया पर लाएं और इफ ब्लॉक की कंडीशन के अंदर रख दें। साउंड टैब में से स्टार्ट साउंड के ब्लॉक को स्क्रिप्ट एरिया पर लाएं और इफ ब्लॉक में जोड़ दें। इवेंट्स टैब में से ब्रॉडकास्ट मैसेज एंड वेट ब्लॉक को स्क्रिप्ट एरिया पर लाएं और इफ ब्लॉक के अंदर जोड़ दें। ब्रॉडकास्ट मैसेज के ऑप्शन पर टैप करें और एक नया मैसेज लिखें, एस्टेरॉयड ब्लास्टेड। फिर वेरिएबल टैब में से 2 मर्तबा चेंज ब्लॉक को स्क्रिप्ट एरिया पर लाएं और इफ ब्लॉक में सबसे नीचे रख दें।
एक सेट ब्लॉक में टाइमर वेरिएबल सेट करके वैल्यू को 2 कर दें और दूसरे सेट ब्लॉक में हिट वेरिएबल सेट करके वैल्यू को 1 कर दें। अपनी वीडियो को 3 मिनट के लिए पॉज करें और ये स्क्रिप्ट दोहराएं। अब क्योंकि स्टार्ट साउंड में म्याऊं लिखा है तो साउंड लाइब्रेरी से चॉम्प नाम की एक साउंड ऐड करें। इस साउंड से ऐसा तासुर पैदा होगा जिससे खेलने वाले को ये लगेगा कि एस्टेरॉयड टूट रहा है। साउंड लाइब्रेरी से चॉम्प नाम की साउंड ऐड करें और इसको एस्टेरॉयड की साउंड में शामिल करें। अपनी वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करें और कोशिश करें। ये पिछले टास्क का जवाब है। वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करें और अपने जवाब की इस्लाह करें। स्क्रिप्ट के पहले हिस्से में जब भी एस्टेरॉयड का क्लोन एनर्जी ब्लास्ट से टकराएगा तो एक लामहदूद लूप चलेगा। इस लूप में सबसे पहले एस्टेरॉयड एनर्जी ब्लास्ट के टकराने की शर्त का मुआयना होगा। अगर शर्त सही हुई तो चॉम्प नाम की एक साउंड आएगी और साथ ही एक मैसेज एस्टेरॉयड ब्लास्टेड ब्रॉडकास्ट होगा। फिर हिट और टाइमर वेरिएबल्स की वैल्यूज़ अपने अपने हिसाब से बढ़ जाएंगी। आइए अब इस स्क्रिप्ट का दूसरा हिस्सा बनाते हैं। कंट्रोल टैब से एक और इफ़ ब्लॉक को पहले से मौजूद इफ़ ब्लॉक में नेस्ट कर दें। फिर ऑपरेटर टैब से इक्वल टू ऑपरेटर को इफ़ ब्लॉक की कंडीशन में रख दें। कंडीशन की बाएं जानिब हिट वेरिएबल रख दें और दाएं जानिब वैल्यू पर टैप करके 2 लिख दें। फिर कंट्रोल टैब से डिलीट दिस क्लोन ब्लॉक को अंदर वाले इफ ब्लॉक के अंदर जोड़ दें। अपनी वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करें और इस स्क्रिप्ट को दोहराएं। स्क्रिप्ट के दूसरे हिस्से की वजह से जब भी हिट की वैल्यू इस क्लोन के लिए 2 होगी तो ये क्लोन गायब यानी डिलीट हो जाएगा। अब स्क्रिप्ट का तीसरा हिस्सा बनाते हैं। सबसे पहले लुक्स टैब से चेंज साइज बाय ब्लॉक को बाहर वाले इफ ब्लॉक में सबसे नीचे जोड़ दें। चेंज ब्लॉक की वैल्यू पर टैप करके वैल्यू को -25 कर दें। फिर कंट्रोल टैब से रिपीट ब्लॉक को स्क्रिप्ट में चेंज ब्लॉक के नीचे जोड़ दें। रिपीट की वैल्यू पर टैप करके 2 कर दें। फिर क्रिएट क्लोन ऑफ ब्लॉक को रिपीट के अंदर जोड़ दें और इस ब्लॉक की वैल्यू में माई सेल्फ की ऑप्शन पर टैप करें। फिर रिपीट ब्लॉक के नीचे कंट्रोल टैब से डिलीट दिस क्लोन ब्लॉक को स्क्रिप्ट में जोड़ दें। आपका स्क्रिप्ट तैयार हो गया है। अपनी वीडियो को 3 मिनट के लिए पॉज करें और इस स्क्रिप्ट को दोहराएं। स्क्रिप्ट के तीसरे हिस्से के नतीजे में जब भी एनर्जी ब्लास्ट क्लोन से पहली मर्तबा टकराएगा तो वो 2 हिस्सों में अपने छोटे क्लोन बना लेगा और बड़ा क्लोन स्टेज से गायब हो जाएगा। यहाँ पर हमारे एस्टेरॉयड के स्क्रिप्ट्स मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन एस्टेरॉयड पर एनर्जी ब्लास्ट को चलाने के लिए हमें एक बटन की ज़रूरत है। क्या आप ये बटन स्प्राइट बना सकते हैं? एक बटन 1 स्प्राइट को प्रोग्राम में शामिल करें और इसका स्क्रिप्ट ऐसे लिखें कि जब भी इस बटन को टैप किया जाए
تو ایک میسج شوٹ براڈ کاسٹ ہو۔ اپنی ویڈیو کو 3 منٹ کے لیے پاز کریں اور کوشش کریں۔ یہ پچھلے ٹاسک کا جواب ہے۔ ویڈیو کو 2 منٹ کے لیے پاز کریں اور اپنے جواب کی اصلاح کریں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم باب نمبر 11 کے بارے میں سیکھیں گے۔